Good morning students, welcome back in our next video and today we are going to do the conclusion part of the poem that is the world is too much with us। आज जो हम करने जा रहे हैं वो conclusion यानी कि अंतिम पार्ट कर रहे हैं हमारे वीडियो का, जिसका नाम है The world is too much with us। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज क्या है। उससे पहले जो फर्स्ट 8 लाइन हमने की थी, हमने 7 की थी, तो वो फर्स्ट 8 लाइन हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट 6 लाइन्स जो वो करवाऊँगा। कि यहाँ पर लास्ट जो 8th लाइन थी वो थी कि फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। जब उसने कहा कि हम हर चीज़ से अपने आप को अलग कर चुके हैं और यही वो वजह है कि फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब होता है आउट ऑफ हारमनी, यानी कि सौहार्द से हम परे हो गए हैं, हमें नेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या है वो मैं आपको बता दूं, मैं एक बार वापस से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं कि कैसे आप लिखोगे और कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे। पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा सारा और उसके बाद में फिर मैं इसमें हिंदी के अंदर बोलूँगा। These lines have been taken from the sonnet entitled The World is Too Much with Us, written by William Wordsworth. The poet was a great lover of nature. He was deeply pained to see that his contemporaries were wasting all their parts and time in earning money, and with that wasting money. They had great power of spiritual elevation and development of the soul, but they wasted all that power in amazing wealth, and with that spending it is wasteful pleasures. Means here they are spending just only a trivial मतलब तुच्छ से हैप्पीनेस, तुच्छ सी खुशी के लिए वो अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इन अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग इट इन एंड आउट ऑफ द सीजन दे वेस्टेड ऑल देयर पावर। मीन्स दे हैव वेस्टेड ऑल देयर पावर्स जस्ट टू अर्न एंड स्पेंड मनी। अदर देन दैट they didn't do anything else. They are not doing anything else. They don't find time to appreciate the beauty of nature. They have not a slightest time to go into the nature, go into the lap of the nature and appreciate it and its beauty. They have not any time. They have completely bartered their hearts. They have completely bartered their hearts and souls with the mercenary bargains. They had been without the finer feelings for nature, means they have not any feelings for the nature and higher values of life. It is certainly a dull bargain in which his contemporaries were engaged. They are engaged in doing or earning money, just spending that money in their trivial pleasure. So that's why they have not any time to appreciate the nature, the beauty of nature. So that's why the poet is saying here that they had been without the finer feeling for nature and higher values of life. There was certainly a dull bargain in which his contemporaries were engaged. The sight of the grand sea lying open in the glare of the moonlight does not attract them. At that time when you will see in the night as the moonlight fell on the open sea, it glares and it looks very beautiful. But these human beings who are indulged in earning money, only earning money, they have not time. They can't appreciate the beauty. So that's why the poet is saying that this beauty doesn't attract these type of people. The winds that
would be making horrible sounds during the day are calm and quiet in the night, but they have no time to appreciate their beauty, and they have no sense of appreciation for such great beauty of nature. They are always busy with the material pleasure of life. Now I am explaining it in Hindi. अब मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पंक्तियाँ जो हैं वो वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस से ली गई है। कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कर रहा है, परंतु कहता है कि इंसान के पास में समय ही नहीं है उस प्रकृति को की सुंदरता को अप्रिशिएट करने का, उसकी प्रशंसा करने का। कवि यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का महान प्रेमी और सराहने वाला व्यक्ति नज़र आता है। उसे देख करके बड़ा दुख होता था कि उसके समय के लोग प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और सराहना खो बैठे थे। यानी कि कवि तो यहाँ पे प्रकृति की प्रेम के प्रति बहुत प्रेम प्रकट कर रहा है, परंतु ये जान करके बहुत दुख होता है कि उसके समय के लोग, उसके कंटेम्परेरीज, उसके समकालीन लोग जो हैं वो प्रकृति की सुंदरता के बारे में अपना विचार खो बैठे हैं, वो प्रकृति के प्रति अपना प्रेम खो बैठे हैं और उसकी सराहना खो बैठे हैं। वो कभी उसकी सराहना करते ही नहीं हैं। वे अपने सारे समय और शक्ति को धन कमाने में लगा देते हैं। पूरी ऊर्जा उनकी धन कमाने में लगी रहती है और आत्मिक उत्थान की अपनी सारी शक्ति धन संचय करने में लगाते हैं, अर्थात अपने अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी धन इकट्ठा करने में लगाते रहते हैं और व्यर्थ के जो सांसारिक सुख हैं उन सुखों पर अपने उस पैसे को नष्ट कर देते हैं। समय असमय धन कमाने और खर्च करने में वो अपनी शक्ति का हास कर रहे हैं, ठीक है, और इसी में वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। उन्हें प्रकृति की सुंदरता को सराहने का समय ही नहीं है, न ही वे प्राकृतिक वस्तुओं के साथ अपना कोई निकट संपर्क स्थापित करते हैं। उन्होंने धन के सौदे में अपने हृदय और अपनी आत्मा का विनिमय कर डाला है, व्यापार कर डाला है, उसे बेच डाला है और प्रकृति के लिए उनके मन में कोई कोमल भावनाएं नहीं है। उनका हृदय बहुत कठोर हो गया है। वास्तव में वह एक अरुचिकर और स्वार्थ प्रधान व्यक्ति बन गया है। ऐसा ही व्यवसाय उन्होंने करना शुरू कर दिया है जिसमें उनके समकालीन लोग अब लगे हुए हैं। चांदनी रात के तेज प्रकाश में पड़े जो एक बहुत ही सुंदर से शोभायुक्त समुद्र का दृश्य उन्हें आकर्षित नहीं करता है। अब हवाएं जो दिन भर चलती रहती हैं, गर्जना करती हैं, वे रात के समय शांत भी हो जाती हैं, परंतु ये सुंदरता और ये सौंदर्य को सराहने के लिए लोगों के पास में समय ही नहीं है, हृदय ही नहीं है। वो तो केवल जीवन के अंदर धन का उपार्जन करने में ही लगे रहते हैं, ऐसे कार्यों में ही अपने आप को संलग्न किए हुए रहते हैं। ये तो थी पहली 8 लाइनें। अब हम नेक्स्ट 6 लाइन्स जो है वो कर रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी। इट मूव्स अस नॉट, ये हमें विचलित नहीं करता है। ग्रेट गॉड है ईश्वर, ये हमें अब विचलित नहीं करता है। आई वुड रादर बी ए पैगन सकल्ड इन ए क्रीड आउट वॉन, कि आई वुड रादर बी ए पैगन, कि मैं एक पैगन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब पैगन क्या है वो समझ लीजिए। पैगन जो है ए फॉलोवर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, ओल्ड फेथ ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम दैट फ्लरिश्ड बिफोर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। मतलब कि ईसाई धर्म के फैलने से पहले ग्रीस और रोम में प्रचलित प्राचीन धर्म का अनुयायी उसे पैगन कहा जाता है। तो इसने कहा कि मैं आज क्रिश्चियन होने की बजाय अगर मैं पैगन होता वो ज़्यादा अच्छा होता है। ईश्वर मुझे उस पैगन धर्म में ले जाइए, उस समय में ले जाइए जब पैगन धर्म था, अर्थात उस वक्त लोग प्रकृति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। Suckled in a creed out won, he brought me in a creed out won। creed out won का मतलब होता है in a faith now old, कि मुझे ले जाइए उस फेथ में, उस विश्वास में जो अब पुराना पड़ चुका है। यानी कि I want to go in that faith, मैं उस विश्वास में, ऐसा विश्वास जो अब पुराना पड़ गया है, मैं उस विश्वास में अब जाना चाहता हूँ। अर्थात मैं उस पैगन धर्म को अब मैं मानना चाहता हूँ, मैं उस पैगन का अनुयायी बनना चाहता हूँ। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, चाहे मैं खड़ा हूँ ऑन दिस प्लीजेंट, इस बहुत ही सुंदर से, प्ली का मतलब होता है मेडो, चारागाह,
कि हालांकि मैं इस बहुत ही सुंदर से चारागाह के पास खड़ा हूँ, परंतु प्रशंसा करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, परंतु उसकी झलक मुझे, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कि जो मुझे बहुत ही कम फॉरलॉर्न कर रही है। अर्थात इसका पूरा मतलब जो है वो मैं समझा दूं कि हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि द ओल्ड पैगन्स बिलीव्ड इन ए नंबर ऑफ डिटीज प्रिसाइडिंग ओवर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। एवरीवेयर इन नेचर द पैगन कुड फील द प्रेजेंस ऑफ देयर डिटीज। डिटीज मतलब देवी देवता। Consequently, he was never lonely in a field or on a mountain or on the seashore. It is this aspect of paganism which attracts Wordsworth, the lover of nature. Paganism brought man much closer to nature than Christianity has been able to do. मतलब प्राचीन पैगन अनेक देवी देवताओं में जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में निवास करते थे, माने जाते थे। सूरज का देवता अलग, समुद्र का देवता अलग, ठीक है, पानी का देवता अलग, आग का देवता अलग। तो ये इस प्रकार से देवता, डिटीज जिसको कहते हैं, कि वो माने जाते थे और लोग उन पर विश्वास करते थे। प्रकृति में हर स्थान पर, चाहे हम कहीं पर भी हों, पैगन धर्मावलंबी जो होते थे वो इन देवी देवताओं को उपस्थित कि इन देवी देवताओं की उपस्थिति को महसूस करते थे। वो जानते थे कि मैं चाहे कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं पहाड़ पर हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, ईश्वर हर जगह निवास करते हैं। परिणाम स्वरूप वो क्या होता था कि वे मैदान में, पर्वत या समुद्र के किनारे कहीं भी अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करते थे। पैगन धर्म के इसी रूप से प्रकृति को अधिक निकट लाया गया था और यही चीज़ यहाँ पर कवि चाहता है। वो कहता है हैव ग्लिम्प्स, मुझे भी वो झलक प्राप्त करनी है, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कि जो मुझे कम फॉरलॉर्न बना सके, यानी कि मुझे भी उसका अनुयायी बना सके। मैं अब इस धर्म का और इस क्रिश्चियनिटी का और भाग नहीं बने रहना चाहता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस भी क्या है? प्रोटियस भी एक ओल्ड मैन ऑफ द सी कहा जाता है इन ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी में एन ओल्ड मैन ऑफ सी के रूप में इसे जाना जाता है, हु पोजेस द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड द पावर ऑफ एज्यूमिंग एनी शेप ही प्लीज्ड। मतलब कि ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र का जो वृद्ध पुरुष है उसको माना जाता था प्रोटियस, जिसमें अलौकिक प्रतिभा थी और वह भविष्य के बारे में बता सकता था और कोई भी रूप धारण कर सकता था। ये चाहता है कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मैं उस प्रोटियस की झलक पाना चाहता हूँ, राइजिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से निकल करके आता है। और हियर ओल्ड ट्राइटन, या फिर मैं उस पुराने ट्राइटन को सुनना चाहता हूँ। ट्राइटन क्या है? ए मैनर सी deity who used to blow his conch shell in order to collect together the creature of sea kingdom। यानी कि एक पुराने देवी देवता होते थे जो समुद्र से निकल करके थे। ट्राइटन समुद्र के देवता को कहा जाता है जो अपना एक शेल, कॉन्च शेल, यानी कि ये कह सकते हैं कि शंख जो है वो बजाते थे और वहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स हैं, जानवर हैं, वो इकट्ठा हो जाते थे। तो ट्राइटन जो है उनको समुद्र का देवता माना जाता था। तो एक देवता जो समुद्र के विभिन्न प्राणियों को एकत्रित करने के लिए अपना शंख बजाया करते थे। तो ऐसे ट्राइटन को मैं सुनना चाहता हूँ, ब्लो हिज wreathed बोन, कि जो क्या है, हॉर्न, सॉरी wreathed हॉर्न, जिन्हें मैं बजाते हुए सुनना चाहता हूँ। हिज, उसका wreathed हॉर्न, wreathed हॉर्न मतलब काउंट सेल, शंख, जिनके शंख को बजाते हुए मैं सुनना चाहता हूँ। मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूँ इन लाइनों को। द पोइट इज सो मच डिस्गस्टेड विद द अगली लाइफ ऑफ दिस एज। यहाँ पर कवि क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, इस बुरी जिंदगी से बहुत दुखी हो गया है। दैट ही डिजायर्स टू रन अवे टू द एज ऑफ पैगन्स, इसलिए वो इच्छा रखता है कि वो पैगन वाले जो लोग सीधे साधे भोले भाले होते थे, उस पैगन समय के लोग, वहाँ पर उस पैगन युग में चले जाना चाहता है। Who were simple and innocent people, कि वहाँ पर बहुत ही साधारण और मासूम लोग रहते थे, वो उस युग में चला जाना चाहता है। The pagans believed in various gods, पैगन जो है वो बहुत सारे अलग अलग ईश्वर में विश्वास करते हैं। एंड
विश्वास करते थे और देवी देवताओं में विश्वास करते थे जो कि नेचर प्रकृति में पाए जाते हैं। वो ये सोचते थे कि प्रकृति में हर जगह ईश्वर निवास करते हैं और वो कभी अकेले नहीं हैं। In their company, they would stay beside meadows and enjoy himself among the variety of beautiful object of nature. यानी कि मतलब क्या है कि उनके सानिध्य में वो कहीं पर भी रुक सकते थे, चारागाहों के नज़दीक या समुद्र में या कहीं पर भी वो रुकते और वो अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करते थे। एंड enjoy himself among the beauty of the nature। और ये जो एक सुंदरता है प्रकृति की, जो अलग अलग सुंदरता है प्रकृति की, उसके बीच रह करके वो अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते थे। उनका एकांकीपन, हिज लोनलीनेस विल वैनिश इन द कंपनी ऑफ द ब्यूटीफुल सी ऑफ नेचर। उनका एकांकीपन जो है वो अब गायब हो गया है साथ पा करके। किसका साथ पा करके? ये सुंदर से दृश्य जो प्रकृति के हैं, इसका साथ पा करके उनका अकेलापन गायब हो गया। वो सोचते हैं कि ये प्रकृति के देवी देवता हर वक्त हमारे साथ में। तो कभी यहाँ पे क्या चाहता है? कभी चाहता है कि उसको एक ऐसा मौका मिले कि वो भी वो शंख ट्राइटन को बजाते हुए सुन सके और वहाँ पर एकत्रित होते हुए सारे जो जानवर हैं उनको वो देख सके। वो ये चाहता है कि जो समुद्र के देवता हैं प्रोटियस, उनको वो देखना चाहता है। वो पैगनिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है इस क्रिश्चियनिटी के बजाय। ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट पैगनिज्म फॉर क्रिश्चियनिटी फॉर द सेक ऑफ हिज लव ऑफ नेचर। कि वो इस क्रिश्चियनिटी के बजाय वो पैगनिज्म को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है, बस इस प्रकृति का सानिध्य पाने के लिए, इस प्रकृति से प्रेम करने के लिए, इस प्रकृति के प्यार की खातिर। क्योंकि पैगन वॉज नेचर वर्शिपर। पैगन जो होते थे वो प्रकृति की पूजा करने वाले होते थे, एक ऐसे विश्वास करने वाले होते थे जो कि पोलिथेइस्टिक रिलीजन के माने जाते हैं। यानी कि वो ऐसे लोग थे कि जो देवी देवताओं को मानने वाले होते थे, देवी देवताओं को में विश्वास करने वाले होते थे। तो ऐसे देवताओं के सानिध्य के अंदर वो रहना चाहता है, वो चले जाना चाहता है। तो ये तो थी आपके पास में एक्सप्लेनेशन लास्ट स्टैंजा की, और इस तरह से हमारी ये सोनेट जो है वो पूरी हो गई। ठीक है, तो अगले जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। एक पोएम और करने के बाद में, क्योंकि अब हम 4 पोएम कर चुके हैं मेरे ख्याल से, 5 पोएम कर चुके हैं। वी हैव डन 5 पोएम्स, सो नाउ आफ्टर दैट we will do further the next chapters. Okay, so till then, goodbye, thank you and have a nice day.